As we told you, Alex Paul Menon has been released. जी हाँ, Alex Paul Menon साहब की रिहाई हो गई है. As we told you, he would be back, and he is back with his family. And hats off to Raman Singh. He did not release a single Maoist prisoner. एक भी माओवादी कैदी को रिलीज नहीं किया गया. एक भी माओवादी कैदी को रिलीज नहीं किया गया, छोड़ा नहीं गया एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई के लिए. Not one prisoner was released, and that I think is amazing. That is amazing. Let's take a look at those visuals. Let's take a look at those visuals. These are exclusive visuals, of course, of some other channel. Appears here courtesy of that channel. Thank you. Alex Paul Menon, B.D. Sharma ji और Professor Hargopal के साथ, and he's back, and as he says, he is willing to serve in Sukma again. He is willing to serve in Sukma once more. That's what he says. Let's hear him. Let's hear Alex Paul Menon. Let's take a look at what he has to say. My state government, my chief minister, and my chief secretary, and all my seniors and friends and family who had supported me in this tough time, and who helped that this release, happen faster. हम सरकार जहां भेजते हैं वहां काम करने वाले हैं. अगर सरकार चाहता तो यही रहेंगे. Play that again, please. I really want to hear this man again. My state government, my chief minister, and my chief secretary, and all my seniors and friends and family who had supported me in this tough time, and who helped that this release, happen faster. हम सरकार जहां भेजते हैं वहां काम करने वाले हैं. अगर सरकार चाहता तो यही रहेंगे. My state government, my chief minister, and my chief secretary, and all my seniors and friends and family who had supported me in this tough time, and who helped that this release, happen faster. हम सरकार जहां भेजते हैं वहां काम करने वाले हैं. अगर सरकार चाहता तो यही. My state government, my chief minister, and my chief secretary, and all my seniors and friends and family who had supported me in this tough time, and who helped that this release, happen faster. हम सरकार जहां भेजते हैं वहां काम करने वाले हैं. अगर सरकार चाहता तो यही. जहां सरकार हमें भेजेगी हम वहीं काम करेंगे, ऐसा कहा एलेक्स पॉल मेनन ने. एलेक्स पॉल मेनन, the collector of Sukma. All right, now let's take a look at Mr. Jay Panda. Let's take a look at Jay Panda, the BJD MP, who was also not involved in this release, but he was certainly involved in the release first of the negotiations for the Italian tourist, and then later on for the release of Gina Hikaka. Let's hear him as well. This is a new thing that has started happening a lot lately. It is possibly a new tactic in response to whatever situation they may be facing on the ground. There has been a lot of increase in both security as well as developmental activities in all these states, and that may be bringing pressure on some of these Maoist organizations. I would welcome, of course, the release of the Sukma collector, and I would also agree that there is need now to have a national consensus. A national policy should evolve about how we should tackle it. But you talked about the Odisha situation. I think it was handled with a very calm and professional manner, because there were no casualties, and what was agreed to was only the expediting of the court hearings of certain prisoners with lesser charges against them. So I think that kind of a policy perhaps would be acceptable to have across the country. And very shortly we will be going across to Gadchiroli to take a look at what's happening over there. We will be going across to the border of Chhattisgarh and Maharashtra to find out from our man in the jungles, Irfan, as to what exactly led to the release of Mr. Alex Paul Menon. क्योंकि ये तो एक तरीके से करिश्मा हो गया कि एलेक्स पॉल मेनन साहब को छोड़ भी दिया गया. एलेक्स पॉल मेनन साहब को छोड़ दिया गया और एक भी कैदी को रिहा नहीं किया गया. आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. दैट वाज रियली एंड ट्रूली अमेजिंग. सुकमा के डीएम को, सुकमा के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर साहब को छोड़ दिया गया और एक भी माओवादी को उनके एक्सचेंज में छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी. वी वर नॉट, I mean, that by the way is something which
Mayank Jain had predicted right over here. He had said that Raman Singh will not release anyone. Raman Singh will not release anyone. As far as Mr. Alex Paul Menon is concerned, it is absolutely true that Alex Paul Menon perhaps broke protocol, perhaps went to an area where he should not have gone, perhaps left his security detail far behind. But Raman Singh is unlikely to succumb to this kind of pressure. Now, do we have Irfan online, please? Can we have Irfan online, please? All right. Now we don't have Irfan online at the moment. Let's take a look at Alex Paul Menon again. Let's hear Alex Paul Menon once more. My state government, my chief minister, and my chief secretary, and all my seniors and friends and family who had supported me in this tough time, and who helped that this release, happen faster. हम सरकार जहां भेजते हैं वहां काम करने वाले हैं. अगर सरकार चाहता तो यही. My state government, my chief minister, and my chief secretary, and all my seniors and friends and family who had supported me in this tough time, and who helped that this release, happen faster. हम सरकार जहां भेजते हैं वहां काम करने वाले हैं. अगर सरकार चाहता तो यही. My state government, my chief minister, and my chief secretary, and all my seniors and friends and family who had supported me in this tough time, and who helped that this release, happen faster. हम सरकार. And as far as the collector is concerned, well, everybody breathes a sigh of relief to the effect that the release of the collector is concerned. And by the way, it was done very professionally, very nicely, very smoothly. There was none of the high drama surrounding the release of Gina Hikaka in Odisha. ओडिशा में जिस प्रकार मशक्कत करनी पड़ी सरकार को, जिस प्रकार राज्य सरकार को अलग अलग जगह पर हाथ पैर दौड़ मारने पड़े, ये कहना पड़ा कि भाई जल्द से जल्द आप इनको छोड़िए, हम ये करेंगे वो करेंगे. आखिर में 32 या 34 माओवादियों को छोड़ना पड़ा एक जीना हिकाका की रिहाई के लिए. यहां पर एक भी माओवादी को छोड़ना नहीं पड़ा. पहले उन्होंने 8 लोगों की लिस्ट भेजी. 8 लोगों की लिस्ट भेजने के बाद उन्होंने इस बात पर उन्होंने हामी भर दी कि एक आप जुडिशियल रिव्यू कमेटी बनाएं जो ये तय करेगी कि जो माओवादी आज की तारीख में कैद में हैं, जो आज की तारीख में जेलों में हैं, क्या उनको रिलीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड दे शुड बी रिलीज्ड एज सून एज पॉसिबल. एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग. Raman Singh has done an absolutely wonderful job. Now remember, we had shown you the film Chhattisgarh Now, and in that Raman Singh had more or less said the same thing, that he will negotiate, but he will negotiate from a position of strength. He will negotiate with anybody, he is willing to talk to anybody, but if people talk to him through the language of violence, then he will not talk to those people. And at the moment with us, we've got Mr. Mayank Jain. Mayank Jain at the moment with us. Mayank, good evening. Good evening. तो Mayank, congratulations. मुबारक हो आपको. पहले किस बात की मुबारक जरा सुन लीजिए. आपका विश्लेषण बिल्कुल 16 आने सही था. आपने जो आरकेबी शो में यहां पर एक बार नहीं 4 मर्तबा कहा, 4 बार, मुझे अभी तक याद है, 4 बार हम लोगों ने आपका विश्लेषण दिया एलेक्स पॉल मेनन के सब्जेक्ट पर, और आपने चारों बार यह कहा कि रमन सिंह किसी को भी रिहा नहीं करेंगे. रमन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो माओवादियों के प्रभाव से, माओवादियों के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, और बिल्कुल वही हुआ है. He has just agreed to a judicial review committee, or rather a review committee, not even a judicial review committee, a review committee to review all the cases of all those Maoists who are in jail. Apart from that, he has not released even one single Maoist in exchange for Alex Paul Menon. Mayank, please go ahead. Yeah, this is, I knew this. I knew that he is not going to compromise because it is part of his core ideology. He is not going to compromise with terrorists. And I'm so happy that they have done this. Yes. And this will sort of wash away the sin which was done during Kandahar. Yes. The way, the whole government had sort of prostrated in front of the terrorists. So I'm so happy that they have not, bent down on their knees. Yes. It's just wonderful. And now, they should take this fight ahead. And they should now,
launch Operation Green Hunt with a new initiative. Yes, yes. No, only thing is now, let me point this out to you. Nirmala Butch, who was the former Chief Secretary of Madhya Pradesh, she said, and she was also involved in the release, in the negotiations for the release of Mr. Alex Paul Menon. She has said that all commitments made to the Maoists by the Chhattisgarh government should be honoured. Now, unless there is a secret protocol which has been arrived at, unless there was some back channel negotiations which were going on, which we are not aware of, the fact remains that whatever is there in the public domain says that not one single Maoist has been released, not one single Naxalite has been released, and only thing that has been agreed to is the setting up of this committee. That's it. Now, do you think they could have done some back channel negotiation in which something else may have been agreed to which we are not aware of? Mayank? I think that there is a possibility that Raman Singh would have told through his. See, this is only conjecture. I mean, Yes. I have no first-hand information. I would like to say this. We understand, yes. Yes. So he must have said that we are not going to release a single terrorist. We don't want to talk to any terrorist, and we will not bow down to any of your demands. Do whatever you like. So this must have put a lot of pressure on them, and we knew that they are not going to kill this man. That's what you said. You said Yes, that I said. that no harm is going to come to you can. In fact, I remember your exact words. The Mayank Jain at the moment with us, और Mayank Jain ने ये कहा था कोई एक हफ्ता पहले ये कहा 21 अप्रैल को अगवाई हुई इनकी जनाब की एलेक्स पॉल मेनन साहब की, उसके बाद ही आपने कहा था कि लेट टेक इट फ्रॉम मी, ही इज नॉट गोइंग टू बी हार्म्ड, ही इज नॉट गोइंग टू बी किल्ड, ऐसा आपने कहा. नाउ व्हाई डिड यू अराइव एट दैट कंक्लूजन? प्लीज टेक अस थ्रू दैट, Mayank. Because somebody who has been working with the Naxalites, somebody who is sympathizing with the Naxalites, somebody who has not, I mean, he is not on the target of the Naxalites. This man was not on the target of the Naxalites. He was sort of, I will not call him an ally, that would be wrong, but he was, I mean, he does not have an ideology which would be opposed to that opposed to the Naxalites. Ji. So there was no reason for the Naxalites to kill him. Right. And it would have sent a very wrong message to many of the people. For example, the Jharkhand bishop who had sympathized with the Naxalites. There are many church organizations in Kerala who had sympathized with the who keep sympathizing with the Naxalites. Yes. So it would not. It was not possible for them to kill this man. So this was my feeling. Yes. And your feeling turned out to be absolutely correct. Now, and there were some people who were telling Yes. this also. There were some experts who were saying that Naxalites are not going to do any harm to this man. right. So knowing this, I mean, if I know this, then the DGP of Chhattisgarh would know 100 times better than me. That's right. And Raman Singh would know 1,000 times better than both of us put together. That's right. So, because they have more access to information. Yes. And that's why I think they knew that they are not going to kill this man and they are not going to harm him. So, they would not compromise with terrorism. I knew that. So that's why I could draw this conclusion. Right, but the only thing is over here. Now, what do you think Raman Singh is going to do next? Is he going to lie low for some time? Is he going to have a quiet cooling off period, and then after that he's going to start negotiations on the one hand, and on the other hand he's going to start Operation Green Hunt all over the place, all Yes, over he's again? going to do What do it. you think he's going to do? Yeah, he has a strategy of fighting the Naxalites. Yes. He has got a Center for Jungle Warfare Yes. in Kanker, right in the heart of the Naxal heartland, right in midst of the Naxal heartland. And there, this Brigadier Pawar, he heads this organization. Yes. And they are training the Chhattisgarh police into jungle warfare. And they are slowly moving, while training, they are slowly moving into jungles around this institute and college. Right. Jungle Warfare College, Counter-Terrorism Institution. And they have created many such institutions. They have given part of their land to the army also. Yes. And a huge complex is coming up where the Indian Army is stationed there. And some instruments like the drones are also functioning there. That's right. Those unmanned airborne vehicles. Aerial, yeah. Yes, UAVs. Yes, that's right. UAVs. So they may not be as
I mean, they may not be as potent as the drone, but at least they are able to watch the activities of the Maoists. Yes, And at they least were watching- they're good for reconnaissance purposes. Even though at the moment you can't fire missiles of them or something like that, but they are very good spotter planes. Yes. Yes, and I am told by some experts that they were watching. The hideout of the Naxalites where Alex was kept. So they were seeing that place also through some of these latest gadgets. So the commitment level of Raman Singh is very high because Andhra Pradesh had fought with Naxalites, but they pushed the Naxalites, the PWG at that time. Yes. They pushed those cadres into Chhattisgarh, Yes. and then Via Gadchiroli in Maharashtra, because that is a Yes. connecting link. Yes. Yes. So lots of cadre of PWG are there in Chhattisgarh, and they are full of this ultra leftists coming from there and coming from all other states. So this is the kind of operations they try to show that they have cleared Andhra of Naxalites, but they took help of Naxalites to win their elections. That's right. They And did. then they pushed the Naxalites into Chhattisgarh, That's right. creating a big problem for Chhattisgarh. So the commitment level of Raman Singh and his people is very high, and I'm really congratulate them for this, and it should set an example for his neighboring state, Odisha, G. that there is no need to compromise with terrorists like this, Yes. and we should stop using the word militants and extremists and left-wing extremism, etc. We should call them terrorists, and we should That's call right. them communist terrorists. That's right. So just by nomenclature, sometimes we can explain everything to a man. When we dilute our No, which language, is very sad. Now over here, Mayank, I would like you to talk a little bit more about this. इस वक्त हमारे साथ है मयंक जैन, और जो मयंक जैन कह रहे हैं, मैं जरा हिंदी में अपने लोगों को समझा दूं. सबसे बड़ी बात है जो परिभाषा हम देते हैं लोगों को, जो हम लेबल लगाते हैं लोगों पे, और उनकी जो परिभाषा आती है उससे एक तरीके से एक परिणाम पर हम लोग पहुंच जाते हैं, और वो ये है कि ये फला नक्सलवादी है या माओवादी है, उनको जरा एक रिस्पेक्टेबल, एक आदरपूर्ण स्थान मिल जाता है. जिस प्रकार हम उनकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, जिस प्रकार विवरण होता है नक्सलवादियों का और माओवादियों का, ऐसा लगता है कि ये आदर्शवादी लोग हैं, इनकी आइडियोलॉजी ऐसी है, इनकी विचारधारा इस प्रकार की है, और चूंकि अपनी विचारधारा से ये लोग पक्के हैं, इस वजह से भारत के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ, करप्ट स्टेट के खिलाफ, भ्रष्ट स्टेट के खिलाफ ये लोग बगावत कर रहे हैं. इस किस्म का एक लेबल सा, इस किस्म का एक जामा पहना देते हैं हम लोग इन लोगों के ऊपर. बल्कि अगर जैसा आप कह रहे हैं, पहले दिन से अगर ये कहा जाए कि भाई ये आतंकवादी लोग हैं, गैर कानूनी काम से काम कर रहे हैं, लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लोगों की लाइफ को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, और ना जाने कितने कत्ल इन लोगों ने किए हैं, ये बात अगर सामने आती है तो लोगों के देखने का रवैया भी अलग हो जाएगा, विचारों में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और उसके बाद लोगों का जो समर्थन है वो सरकार के हर एक्शन के साथ होगा. जी मयंक बताएं. हाँ जी बिल्कुल. तो ये जो जिस तरह से जो कम्युनिस्ट टेररिस्ट हैं, नक्सलाइट्स हैं, जिस तरह से इनका लश्कर तैयबा के साथ लिंक है, और इस लिंक के बारे में सबसे पहले रमन सिंह जी ने ही बताया था. जी. उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 2 साल पहले, और उन्होंने बताया था कि एलईटी के साथ उनके पास एविडेंस है कि किस तरह से ये मिक्सड है नक्सलाइट्स. जी. उसके बाद अब एविडेंस मिल रहा है कि उल्फा के साथ भी ये लोग मिक्सड हैं नॉर्थ ईस्ट में. जी. और इनके जो तो इसका ये मतलब है कि जितने भी एंटी नेशनल फोर्सेस भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, उन सबके साथ नक्सलाइट्स के लिंक्स हैं. जी. तो ये बातें जितनी बार कही जाएंगी लोगों को, और लेकिन हमारे यहाँ क्या डिस्कस होता है कि जी ये तो गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं. हकीकत ये है कि 250 मोबाइल टावर्स ये लोग उड़ा चुके हैं. जी. 500 से ज्यादा स्कूल्स ये लोग नष्ट कर चुके हैं. जी. 10,000 लोग नक्सलियों की तरह मारे जा चुके हैं इस लड़ाई में. जी. तो ये इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, और अधिकांश लोग जो मरे हैं वो गरीब है. जो पुलिस कांस्टेबल मरता है वो गरीब से गरीब परिवार से आता है. तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट के लिए एजेंसीज वहां पहुंचती हैं, उन्हीं से उगरानी की जाती है, उन्हीं से एक्सटॉर्शन किया जाता है. इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो बाहर से नहीं है, वो यहाँ इंडिया से ही एक्सटॉर्शन के रूप में ये लोग जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, उनसे वो पैसा खींचते हैं. अभी एक बहुत बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव पकड़ा गया था, लेकिन वो क्या करे, वो वहाँ पे ऑपरेट ही नहीं कर सकता है प्लांट, अगर वहां पर नक्सलाइट्स को वो लोग हफ्ता नहीं दें. तो
इस तरह का जब तक, तो इस वजह से लोग जाते नहीं है वहां पर। इस वजह से वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, रोड्स का बिल्डिंग है, जो टेलीकॉम टावर्स बनने हैं, जो वहां पर हॉस्पिटल्स आने हैं या वहां पर प्रोजेक्ट्स आने हैं माइनिंग के, लोग कतराते हैं वहां जाने में। तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों का होता है। जी बिल्कुल। लेकिन कम्युनिस्ट ये हर बार कहेंगे, नहीं देखिए जी, सो मेनी ऑफ देम हैव गॉट डिस्प्लेस्ड एंड आर लिविंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। भाई पॉवर्टी तो वहां पर और बढ़ेगी अगर आप वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं आने देंगे। जी बिल्कुल। एक तरफ आप वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं आने देते, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वहां पर पॉवर्टी बहुत है। नहीं, यहाँ सबसे बड़ी बात ये बनती है मैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये बनती है, इनमें से काफी लोग हमारे मित्र हैं, काफी लोग जो गैर सरकारी संगठन चलाते हैं, जो आदिवासियों के लिए काफी देर तक काम कर रहे हैं, अग्रसर हैं वो आदिवासियों के लिए काफी काम करने में, और ये बार बार कहते हैं भाई उनकी संस्कृति को आप खत्म मत कीजिए, कल्चर को आप खत्म मत कीजिए। मैं बार बार उनसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हैं? मेरा ये कहना है, जो आप आदिवासियों का जो रहन सहन है, सब कुछ है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आर यू ट्राइंग टू टर्न दिस इनटू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर है, यहां पर कुछ ना करें, मतलब कि उनकी डेवलपमेंट हो ही ना पाए? हु आर दे टू डिसाइड? दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू नो। जी जनाब बताएं। ये बड़े अज्ञानी लोग हैं जिन लोगों की बात आप बता रहे हैं जी। अगर वो गुजरात चले जाएं तो उनको समझ में आ जाएगा कि दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं। जी। जब पिछले इलेक्शंस में कुछ जर्नलिस्ट वहां पर ट्राइबल एरियाज में पहुंचे जी, तो उन्होंने जब सब ट्राइबल्स को देखा तो उन्होंने कहा, वेयर आर द ट्राइबल्स? यस। क्योंकि वहां पर वो जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं यहाँ पर शहर में, वो उसी प्रकार के कपड़े पहने हुए थे वो लोग, उसी प्रकार का काम कर रहे थे, उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पे। उन्होंने सोचा कि वहाँ पर कुछ जंगल की ड्रेसेस और वहाँ पे जो उनके जो वन जो कल्चर है वहाँ के, उस हिसाब से ड्रेसेस पहने हुए होंगे लोगों ने जी। लेकिन वो नहीं था। वो जैसे शहरों में देयर इज नो अर्बन ट्राइबल डिवाइड इन गुजरात जी, और बाकी गुजरात और ट्राइबल गुजरात में खास अंतर नहीं है कल्चर में जी। वो काफी मिक्सअप है, हो चुका है दोनों आपस में, और इंटर मैरिजेस भी हो रही हैं। ट्राइबल की मैरिजेस पटेल से हो रही हैं जो नॉन ट्राइबल एरियाज है वहां पर जी। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन कल्चर, जो ट्राइबल कल्चर है, वो वहां पर जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर है वो बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुई है। वो अपने सारे लेकिन मेरा यहाँ पर कहना है, मैं हैंडीक्राफ्ट करते हैं, तो दोनों चीजें साथ में हो सकती है। मैं यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप दिल्ली के रहने वाले हैं। अगर आप 50 साल पहले दिल्ली में चले जाएं या 60 साल पहले दिल्ली में चले जाएं तो दिल्ली में भी एक इवोल्यूशन हुई है। उस वक्त की दिल्ली और आज की दिल्ली में जमीन आसमान का फर्क है। उसके पहले अगर आप जाएं 100-150 साल के पहले की दिल्ली में जाएं तो वो दिल्ली बिल्कुल अलग थी। उसके पहले भी अगर आप दिल्ली में चले जाएं तो वो दिल्ली अलग थी। भाई हर चीज इवॉल्व होती है, हर चीज आगे बढ़ती है, उसमें प्रगति होती है। कई जगह पे प्रगति होती है, कोई चीज पीछे आती है, कोई नष्ट होती है, कोई आगे बढ़ती है। जैसे चांदनी चौक के बीच में एक नहर हुआ करती थी जिसको नहरे भिष्ट कहा जाता था, वो आखिर में बंद करनी पड़ी क्योंकि उसमें बड़ी गंदगी पड़ गई थी वगैरह वगैरह, अंग्रेजों ने आकर के बंद कर दी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी चीज है, नथिंग एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। मेरा ये कहना है कि दिल्ली का जो कैपिटल था वो चांदनी चौक के आसपास का इलाका था, जैसे ओल्ड सेक्रेटेरिएट जो अंग्रेजों ने बनाया, और उसके पहले लाल किला के आसपास सारी की सारी दिल्ली की जो लाइफ थी वो रिवॉल्व करती थी। अब आप दोबारा लाल किले को तो सेक्रेटेरिएट नहीं बना सकते, मेरा ये कहना है। वापस आप शाहजहां को तो नहीं ला सकते। अब ये हमारे जो एनजीओ हैं, हमारे जितने भी, मेरा जी बड़ी अच्छी मित्र है मेरी, और हमारे सामने आकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें कहती हैं, और उनका बाकी मैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, बाकी सब चीजें हुई हैं, उसके बारे में फिलहाल नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा इन ऐसे लोगों से ये सवाल है, मेरा जैसे अरुंधति रॉय है, उन लोगों से ये सवाल है कि आप क्या चाहते हैं कि आदिवासियों को टेलीफोन ना मिले, आदिवासियों को टेलीविजन ना मिले, आदिवासियों को स्कूल्स ना मिले, आदिवासियों को अस्पताल ना मिले, आदिवासियों को जो भी पूरी दुनिया ने जो भी प्रगति करी है वो आदिवासी उससे वंचित रहें? क्या चाहते हैं ये लोग कि गिर फॉरेस्ट में जैसे गिर लायन को बना रखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसी प्रकार आदिवासियों को आज का अजूबा बना करके लोगों के सामने पेश किया जाए कि ये देखो, ये इस प्रकार के भी जानवर रहते हैं यहाँ पे? मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग that they pretend to speak for the Adivasis, but they want to keep them right there in the worst kind of living conditions. मैं मैं आपसे पूरी तरह से अग्री करता हूं।
और आप जो बात कह रहे हैं, ये 1956 में एक कमेटी बनी थी, जस्टिस नियो की कमेटी, जिसने ट्राइबल एरियाज पे एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, जो अपनी तरह का इकलौता डॉक्यूमेंट है, जिसमें उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रोल रहा है इस सारे इलाके में, इस पर जस्टिस नियोगी ने बहुत ही डिटेल रिसर्च की थी और कंक्लूजन और रिकमेंडेशन दिए थे। उसके बाद उसमें उन्होंने ये बताया कि ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर स्कूल्स कॉलेजेस बने जिससे कि उन्हीं के स्कूल्स बन पाए, गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं आए, उनकी यही कोशिश है, ऐसा जस्टिस नियोगी ने कहा था। और उनको वंचित रखना चाहते हैं बाहर की दुनिया से। अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो जाएगा वहां पर, तो फिर नक्सलाइट कोर्ट्स कैसे चलाएंगे? That's right. अगर वहां पर थाना आ जाएगा तो नक्सलाइट के थाने कैसे काम करेंगे? जी बिल्कुल। वहां पर अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंच जाएगी तो उसके बाद वो एक्सटॉर्शन कैसे करेंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट से? और अपनी जो जन अदालत जो करते हैं, जहाँ पे लोगों को मार देते हैं, गला काट देते हैं लोगों का और फांसी लगा देते हैं, वो कैसे चलेगा? और नारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो सबसे ज्यादा अत्याचार इस वक्त नक्सली बेल्ट में हो रहा है, वो विमेन के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो कहानी, सबसे बड़ी कहानी नक्सली एरिया की है कि विमेन के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है विमेन का। और वो जब भी वहां से भागने का उनको मौका मिलता है, बाहर की दुनिया को जो वो बताती हैं, तो वो बहुत ही भयानक स्थिति है वहां पर महिलाओं की। जिस तरह से माओइस्ट काडर में जो उन्होंने इन टेररिस्ट ने महिलाओं को पकड़ के जबरदस्ती उन्होंने जिस प्रकार के काम करवाए। जी बिल्कुल। तो ये सारे फैक्ट जो हैं ये रिपीटेडली हैमर करने चाहिए हमारी मीडिया को, लेकिन हमारी मीडिया सिर्फ एक पुराना रोना लेकर बैठी रहती है कि अब ये डेवलपमेंट नहीं हुआ जी, तो वो तो गन्स अपने हाथ में लेंगे। फिर अरुंधति रॉय कहती है कि साहब नहीं, डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है डेवलपमेंट नहीं हुआ वो तो अलग बात है। अरुंधति रॉय की अगर बातें सुने और उन जैसे लोगों की बातें सुने तो उनका तो ये कहना है कि डेवलपमेंट होनी ही नहीं चाहिए। जंगल को वैसे का वैसे ही छोड़ दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पे। मयंक जैन, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई आज मैं और आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, मैं और आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, मैं और आप एक जमाने में पाम टॉप इस्तेमाल किया करते थे। आज की तारीख में लोग जो है सैमसंग गैलेक्सी आ गया है, आईफोन आ गया है, ना जाने क्या अलग अलग चीजें आ गई हैं। आप अपने ही नागरिकों को, आखिरकार आदिवासी भारत के नागरिक हैं, या तो पहले आप ये मानिए कि आदिवासी नागरिक नहीं है, तो आप उनको इन सब चीजों से वंचित कैसे रख सकते हैं? आगे उनको वो तय करें, आगे अपनी किस्मत का फैसला वो तय करें। उनको चाहिए नहीं चाहिए वो अलहदा है, बट दे शुड हैव द चॉइस वेदर और नॉट दे वांट इट। हियर वी आर ट्राइंग टू कीप देम अवे फ्रॉम ऑल दैट। जनाब बताएं। यस, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये मैं तो ये बता रहा था कि ये सिर्फ एक ड्रामा ओढ़ रखा है इन्होंने, डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो रहा है। वास्तव में ये लोग इनको अलूफ रखना चाहते हैं बाकी दुनिया से, जिससे कि इन लोगों का एक छत्र राज वहां पर चल सके और ये सारी कॉन्स्पिरेसीज कर सके इन लोगों के माध्यम से इस देश के खिलाफ। ये रणनीति है। ये रणनीति 1956 में जस्टिस नियोगी ने बताई थी और आज यही रणनीति कम्युनिस्टों ने अपना लिया है इन लोगों से। और ये हो सकता है दोनों मिलकर काम कर रहे हो। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी मानता है कि ये दोनों जो मिशनरीज है, फॉरेन मिशनरीज और नक्सलाइट, ये दोनों मिलकर इन टेंडम ये काम कर रहे हो। इनको अलूफ रखना चाहते हैं, बाकी दुनिया से कट ऑफ रखना चाहते हैं, जैसा आप बता रहे हैं, और उनको जिससे कि पूरा गिरफ्त में ले सके उन भोले लोगों को। ये भोले वो इसलिए रह गए हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है बाहर की दुनिया की, और कैसे टैकल करना है इन आइडियोलॉजीज को, इसके बारे में उनको मालूम नहीं है। वो बिल्कुल वर्जिन जगह हैं अभी तक बहुत सारी इनमें। लेकिन आखिर में आप ये बताएं, यहां पर सबसे बड़ा फेलियर जो है वो हमारी केंद्र सरकार का है। ये मैं मान करके चलता हूं, सबसे बड़ा फेलियर जो है हमारी सरकारों का है। सबसे बड़ा फेलियर ये है कि सरकार ने बड़ा एक एम्बिवेलेंट एटीट्यूड अडॉप्ट किया है यहां पर, क्योंकि आप रिस्पेक्टेबिलिटी देते हैं ऐसे एनजीओज को, आप रिस्पेक्टेबिलिटी देते हैं ऐसे अपोलोजिस्ट्स को, माओइस्ट के, नक्सलाइट्स के आइडियोलॉग्स को आप इतना आदर सम्मान देते हैं, लिहाजा naturally all the Naxalites, all the Maoists, all these terrorists will be emboldened by the fact that the government itself is scared of us. The government itself does not want to do anything to us. So we can get away with kidnapping, we can get away with murder, we can get away with so many things. Now, what is the message that went across? We can kill 73 CRPF men and nothing will happen to us. We can kill 15 CRPF men, including 4 women and 1 pregnant, among whom one was a pregnant lady,
and nobody can do anything to us. We can come into a village, pick up 12 people, slit the throat of 2 of these people in front of the entire village, and nobody can do anything to us. This is the message that has gone across. So which means the response from the government should have been swift and brutal, as it would have been in any other case. But here the response has been so ambivalent, it is almost as if we are weak-kneed. जी बताएं. हाँ जी, बिल्कुल. ये जो सरकार का रवैया है, ये बिल्कुल उल्टा है जो कि टेररिज्म से लड़ने के लिए वास्तव में होना चाहिए. जी. टेररिज्म से लड़ने का एक ही तरीका है कि जो अगर वो एक हत्या करें किसी भी व्यक्ति की, तो उसके बाद उनको ऐसा जवाब दिया जाए, इतना महंगा पड़े उनको एक भी व्यक्ति को मार देना, कि वो दोबारा इतनी बड़ी कॉस्ट को लेने के लिए कॉस्ट लेनी पड़ेगी. ये ख्याल उनको बार बार आए कि हमको इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी अगर हमने इनको छुआ. तो इस तरह का रवैया इनका है ही नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं. इनको कभी कभी सिंपैथी होती है नेक्सलिज्म से, कभी कभी ये लोग परेशान हो जाते हैं, कभी ये सोचते हैं कि अब इसका क्या करें. तो जब तक ये इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी इस आइडियोलॉजी के बारे में, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. सबसे पहले तो इनको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए, सबसे पहले उनको सीपीआई माओइस्ट का मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए, तब इनकी क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में. देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि क्षात्र तेज जो आता है वो ब्रह्म तेज के बाद ही आता है. जी. तो इनके अंदर क्षात्र तेज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इनके अंदर ब्रह्म तेज है ही नहीं. जब तक ये अध्ययन नहीं करेंगे, इनके आइडियोलॉग्स जो सीपीआई माओइस्ट का अवेलेबल है SATP.org, जो कि KPS गिल की वेबसाइट है, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, SATP.org पर अवेलेबल है ये डॉक्यूमेंट, सारे माओइस्ट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सीपीआई माओइस्ट का मैनिफेस्टो है. वो उसमें कितना वायलेंस के बारे में उन्होंने कहा है, ओवरथ्रो करने की बात है. भारत की प्रेजेंट जो रेजीम है उसको पूरी तरह से ओवरथ्रो करके ये लोग पावर में आना चाहते हैं, और उसके लिए कितना ब्लडी रेवोल्यूशन ये लोग करने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरा खुला चिट्ठा उसके अंदर लिखा है. वहाँ पे कहीं डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है जी. वहाँ पे कहीं गरीबी की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे कहीं ट्राइबल्स की कल्चर की बात नहीं हो रही है. ये तो सिर्फ एक जामा ओढ़ रखा है, एक स्मोक स्क्रीन है ये जी. इसके पीछे वास्तव में कम्युनिस्टों का एजेंडा है अपनी खूनी क्रांति के माध्यम से इस देश पे कब्जा करने का. जी बिल्कुल. जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, हमारे सबसे पहले हमारे पॉलिटिशियंस को, अगर ये समझ में आएगी और उसके बाद उनको देश के लिए प्यार होगा, उनको ये बात समझ में आ जाएगी, तो उसके बाद वो जब इंडियन आर्मी का उपयोग इस तरह से करेंगे तो इंडियन आर्मी को तो समझ में सब आ ही जाएगा. दुरुस्त बात है. जब उनको क्लियर एक मैंडेट मिल जाएगा इंडियन आर्मी को या सीआरपीएफ को, तो वो जानते हैं इस काम को करना. That's right, absolutely. लेकिन हमारी लीडरशिप कंफ्यूज है, तो इसकी वजह से हमारी आर्म फोर्सेस की बलि चढ़ रही है आज. Right, absolutely. Now, but the point is there should be no confusion, and over here I'm very sorry to say our media has not played the kind of role that we ought to. I agree. There would be a lot of ideologues in the media. I have no problem at all about highlighting, the fact that, there are corrupt companies who have gone over there. They've destroyed the tribal habitat. They've destroyed the environment, destroyed the forest, killed off so many of these tribals, killed off so many of the people over there, which is absolutely true. By all means, expose that. But also give the other side. Also give the other side. You just can't take one ideological position and hammer it home. After all, at the end of the day, how many people have the Naxalites killed? How many people have the Maoists killed? That is something that also has to be brought out. You just can't buckle under pressure from all these people. सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप घुटने टेक देंगे तो फिर मुल्क का क्या? या तो आप ये तय कर लें कि भाई हम मुल्क को चाहते ही नहीं है, मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं. फॉर इंस्टेंस, जस्ट चलते चलते एक छोटी सी चीज आपके सामने मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू करी, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी जब भी अन्ना हजारे से ये पूछा गया, मैंने खुद पूछा उनसे कि भाई प्रशांत भूषण जी वो शख्स हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि कश्मीर को आजादी दे दीजिए या कश्मीरी अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो शौक से जाने दें, उसके ऊपर अन्ना हजारे कोई जवाब नहीं देते. मेरा ये कहना है आप भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन किसके खिलाफ आप आंदोलन चलाएंगे जब देश के ही टुकड़े टुकड़े करने वाले आपके आसपास हैं और उनके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे? मयंक. हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. देश के टुकड़े जो लोग कर रहे हैं वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं जी. केवल पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होता, देश के साथ गद्दारी का जो भ्रष्टाचार होता है, और पाकिस्तान के साथ जो सिंपैथी
बहुत सारे एक जो हमारा एक तबका है मीडिया का, जो मैंने पहले भी एक बार बताया था, किस तरह से परवेज मुशर्रफ के जूते चाट रहे थे जी, बड़े बड़े जो एडिटर्स थे। एक शर्म का दिन था भारत के इतिहास का, मीडिया के इतिहास का। तो उस दिन एक्सपोज हो गए थे जब प्रणय रॉय ने वो टेप दिखाया था एनडीटीवी पर उस वक्त। जी, तो उस वक्त काफी सारे दिग्गज मीडिया के एक्सपोज हुए थे। जी, प्रणय रॉय ने तो बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, क्योंकि उसको पता था कि ये टेप वो दिखाने वाला है। लेकिन जो बाकी कई लोग एक्सपोज हुए, उसे मालूम पड़ा कि कितना बड़ा सिंपैथी है। तो वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? जी, तो अन्ना हजारे की लड़ाई ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी होनी चाहिए, जो राष्ट्र विरोधी तत्व, जो अब उनका जो भ्रष्ट विचार है वो थोपते हैं देश के ऊपर अपने स्टेटस का फायदा उठाकर। कोई बड़ा वकील है तो अपने स्टेटस का फायदा उठाकर अपना विचार थोपता है जी, हमारे ऊपर या हमारे मीडिया के ऊपर जी। तो, और बच्चों पे असर पड़ता है। किसी का बड़ा स्टेटस होता है, वो ऐसी बात कहता है, जो यंग माइंड है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है, गलत असर पड़ता है जी। तो इसलिए जो है आपके जैसे चैनल्स इस देश में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ना के बराबर हैं, जो कि खुले आम इस तरह की बात करते हो। तो ये एक माइनॉरिटी में है आपका चैनल जी। तो ये मेजॉरिटी में जिस दिन हो जाएंगे इस तरह के चैनल जी, तो टाइम बदल जाएगा। ये इस किस्म के चैनल मेजॉरिटी में तभी होते हैं जब देश के ऊपर कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है। जैसे 26/11 को आतंकवादी हमला हुआ तो सभी लोगों ने यही भाषा इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, और जैसे ही लोग भूल गए 26/11 को, उसके बाद सब लोगों की भाषा एक बार फिर बदल गई। और होम मिनिस्टर भी वही आ गया पहले वाला, और वो गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के थे, राज्य के थे, वो वापस आ गए। और जहां तक के केंद्र का प्रश्न है, केंद्र ने भी वही झांसे देने शुरू कर दिए सबको। फॉर इंस्टेंस, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन ऑन द 6th of July, 1 year prior to that, there was a series of bomb blasts in Mumbai. उस वक्त भी यही भाषा का इस्तेमाल किया कि भाई शांति रखिए, शांति बरतिए, वायलेंस मत कीजिए, घबराइएगा नहीं। ये भी कहा गया कि हर जगह पर अलग अलग स्टेशन के ऊपर सीसीटीवी कैमरा होंगे, लोगों को चेक किया जाएगा, कुछ किया जाएगा। 4 के 5 दिन के बाद वो सीसीटीवी कैमरे काम करने बंद हो गए और लोगों की चेकिंग भी बंद हो गई। और जहां तक आरपीएफ का प्रश्न है, आरपीएफ ने कहा कि भाई हमें प्रॉमिस किया गया था कि इतने रिसोर्सेज हमको देंगे, जो हमारे पास बेचारे कांस्टेबल हैं उनसे तो हम यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। मेरा ये कहना है, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार से मुंबई चलती है, इतनी तेज रफ्तार से हमारे बाकी मेट्रो सिटी चलते हैं, सब लोग भूल जाते हैं। आपको याद होगा सरोजनी नगर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, जी, सरोजनी नगर में जो ब्लास्ट हुआ, अयोध्या में ब्लास्ट हुआ, जयपुर में ब्लास्ट हुआ, हर जगह पे, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, हर जगह पे लोग भूल गए कि भाई ये सब चीजें हुई हैं। मेरा ये कहना है कि हम लोग हिंदुस्तान में लोग जो हैं, वी गो इनटू आवर कंफर्ट जोन, वी इमीडिएटली गो इनटू आवर कंफर्ट जोन, वी डोंट वांट टू मेक आवरसेल्व्स अनकंफर्टेबल। हम लोग अपने आप को डिस्कंफर्ट नहीं देना चाहते, अनकंफर्टेबल अपने आप को नहीं करना चाहते। आखिरकार अगर लंदन में मेट्रो स्टेशन के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, आपको याद होगा, उसी दौरान मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे, इफ यू रिमेंबर। 7/7 in London, and I think just around that time 13/7 or something. 13/7 here. Yes. ये उसी वक्त यहाँ पर हुआ। 11/7 in Bombay. 11/7 in Bombay. 11/7 in Bombay, and I think 13/7 in London. 7/7 in 7/7 in London, and 13/7 in Mumbai. Now, Yes. in London, look at the kind of security that there is already. After that, there has been no incident. After that, nothing has happened. But the level of security alert has not come down. In a similar manner, if you remember, prior to that, 3 साल पहले उसके मैड्रिड में भी इसी प्रकार के ट्रेन में बम ब्लास्ट हुए थे। बास्क टेररिस्ट जो हैं वहां के, बास्क सेपरेटिस्ट जो हैं स्पेन के, उन्होंने भी इस प्रकार मैड्रिड में लोकल रेलवे स्टेशन, लोकल रेलवे नेटवर्क के ऊपर बम ब्लास्ट किए थे। उसके बाद there has been no such thing that has happened. There has been no such thing that has happened because the level of security alertness has not gone down, not just from the security forces, but even from the people. Our people also go back into their comfort zone. Mayank. See, masses have always been like this. And ये जो अमेरिका में जो आम आदमी है वो तो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। हिंदुस्तान का तो भी बहुत अवेयर है जी। ये लीडर्स जो है ना, इन्होंने फेल कर दिया हमको जी। ये लीडर्स जो है वो कॉर्पोरेट्स के साथ डीलिंग्स में इतने बिजी हैं जी कि इन चीजों में वो टाइम लगाएंगे तो उतने करोड़ का नुकसान उनको पर डे। दुरुस्त बात। तो पर आवर के हिसाब से वो लोग अपनी कमाई गिनते हैं, बहुत से लोग इनमें से, सब नहीं। तो इस वजह से जो है वो उनका ध्यान ही नहीं है इन चीजों पे जी। तो ये करप्शन जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पे सबसे पहला वार करता है जी। जो आरडीएक्स मुंबई के लिए आया था,
बॉम्बे ब्लास्ट के लिए 1993 की जो आप बात 1993 में 12 मार्च 1993 को। जी हाँ जी 20 लाख रुपए की रिश्वत एक कस्टम्स ऑफिशियल को दी थी जी, और उसके बाद जो है वो आरडीएक्स भारत के अंदर आ गया था जी। तो ये जो ऑब्सेशन है पैसा कमाने का, और ये जो सारे नेताओं का, बहुत से नेताओं का ये ऑब्सेशन हो चुका है, तो इसलिए वो उनका ये प्रायोरिटी एरिया नहीं है ना जी। उनका ये प्रायोरिटी एरिया नहीं है कि वो केवल इलेक्शन के वक्त जाकर वोट मांगते हैं। वो सारे साल नहीं जाते, वो सारे साल लोगों के बीच नहीं जाते, लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं समझते। ये सब जगह आपको दिखेगा, केवल टेररिज्म से लड़ने के लिए नहीं जी। ये हर स्फीयर में उनका जो है वो दखल बहुत कम है जी। वो बाकी सिर्फ आर्म चेयर पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे जी, और एक दूसरे के साथ नुक्ताचीनी करते रहेंगे, लेकिन उनको किसी इश्यूज के प्रति कोई लार्जर कमिटमेंट का भाव उनके अंदर नहीं। लेकिन यहाँ पर मयंक, हमारे लोगों को भी जागरूक करना हम सब लोगों का फर्ज बनता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, हमारे अपने ही लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में ना तो सोचते हैं, ना उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। मेरा ये कहना है कि जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, यहां पर मुंबई शहर की मैं बात कर रहा हूं, अभी दिल्ली शहर की भी बात करेंगे, दिल्ली में भी हुए, आपको याद होगा दिल्ली में भी टेररिस्ट इंसिडेंट हुए। अगर 1985 से गिने जाएं, जून 1985 में जो ट्रांजिस्टर बॉम्ब सबसे पहले बसों के अंदर रखे गए, उसमें तकरीबन 84 लोग मारे गए थे। 1985 की बात है, जून की बात है। मेरा यह कहना है कि भले दिल्ली हो या मुंबई हो, मुंबई में तकरीबन 1-1.5 लाख लोग पहुंचे गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास 3 दिसंबर को और 2008 3 दिसंबर को। और उसके बाद अगले साल में जब चुनाव हुए, चुनाव में वही कांग्रेस पार्टी जीत करके वापस आई, बल्कि ज्यादा मेजॉरिटी के साथ जीत करके वापस आई। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को एक भी सीट नहीं मिली मुंबई शहर में। मतलब ये इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या हो सकती है, बताएं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जी। जो प्रेजेंट लीडरशिप है जो बीजेपी की, उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि क्यों। लेकिन क्या होता है ना, बीजेपी में तो फेलियर्स को प्रमोट कर दिया जाता है। That's right. जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, जो महाराष्ट्र के, जी, जो जिनके अध्यक्षता में बार बार बीजेपी फेल हो गई गवर्नमेंट बनाने में महाराष्ट्र में, जी, उसको प्रमोट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जी। यूपी में जो गवर्नमेंट हार गए थे राजनाथ सिंह, उनको प्रमोट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। जी। तो बीजेपी में बार बार फेलियर्स को जो प्रमोशन हो रहा है तो इसकी वजह से सब सत्यानाश हो रहा है बीजेपी का। जी। तो बीजेपी को बचाना है तो सबसे पहले फेलियर्स को घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जी। उसके बाद फिर सफाई होनी चाहिए बीजेपी की, तब बीजेपी में कोई बात बन सकती है। That's right. सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तकरीबन सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन जैसे रमन सिंह की अगर आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, या नरेंद्र मोदी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और मुझे लगता है इस किस्म के उदाहरण प्रशासकीय तौर पर सब लोगों को फॉलो करने चाहिए। आखिरकार रमन सिंह ने अपने कलेक्टर को छुड़वा लिया और एक भी माओवादी को रिहा नहीं किया। उन्हें नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए इस चीज के लिए जी। और ये एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने, कम से कम एक बीजेपी के लीडर होने के नाते, जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कमिटमेंट के भाव की वजह से ये लोग पहली बार पावर में आए थे, और बार बार हम मोदी जी को देख रहे हैं कि वो भी उसी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं और वो जिस तरह से सक्सीड कर रहे हैं। तो अगर ऐसे बीजेपी चलती रही, लेकिन आपने देखा ना महाराष्ट्र में नहीं हो पाया ये चीज। जी, ये नहीं हो पाया। तो ये देखना पड़ेगा ना कि कितने सालों से कौन कौन वहाँ पर लीडर्स बने हुए हैं जी, कितने सालों तक वहाँ पर कौन कौन अध्यक्ष थे, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, कि किस प्रकार का उनका चिंतन था। तो ये सारी चीजों को बीजेपी को बहुत देखना पड़ेगा, नहीं तो कभी पावर में आ नहीं पाएगी सेंटर में। नहीं आ पाएगी। वो तो आप भूल जाइए, वो नहीं हो सकता है। सक्सेसफुल फॉर्मूला जो है उनके पास बीजेपी का, उसको तो वो रख लेते हैं छुपा कर, और जो फेलियर वाला फॉर्मूला है उसको आगे कर देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, जो मुख्य विपक्ष पार्टी है, वो शायद रूलिंग पार्टी का ही काम कर रही है, सत्ता पक्ष का ही काम कर रही है। कभी कभी ऐसा लगता है सिर्फ नाम के वास्ते प्रोटेस्ट हो जाती है, लेकिन बिल्कुल साफ प्रतीत होता है कि पीछे से शेक हैंड हो गया है किसी भी इशू। तो अभी रिसेंटली एक बीजेपी के बहुत बड़े लीडर ने, उसने बहुत सारे कमेंट्स दिए और अखबारों में छपा, उसमें बार बार यही सफाई थी कि देखिए हम कोई एनडीए कांग्रेस के साथ मिलकर कोई हमने बोफोर्स में कुछ नहीं किया जी।
हमने कोई बोफोर्स में बचाया नहीं कांग्रेस को जी। तो इस तरह की अगर डिफेंसिव मुद्रा होती है तो इमीडिएटली अगर मैं ये कहूँ आपके घर में आऊं और आपकी कोई क्रॉकरी टूटने की आवाज है और मैं बोलूं कि मैंने नहीं तोड़ी, जी बिल्कुल, तो आप जरूर समझ लीजिएगा कि मेरा कोई ना कोई लिंक था उस क्रॉकरी। But that was sad. That was pretty sad. That was very sad because for 6 years the Bharatiya Janata Party-led NDA government was in power and they were able to do nothing about the Bofors deal. And even as far as and they were able to do nothing about the Bofors deal. In fact, they wanted to do nothing about the Bofors deal. Let's be very clear. They were in power. They could have easily arrested Otavio Kotroki at that time. They could have put him in jail at that time. They could have done so many things, but they did not do so. So is the case at the moment with the Naxali. But Raman Singh has set an example. I think that's an example everybody else must follow. And congratulations to you, Mayank, for an analysis which was absolutely spot on. Congratulations once again. It was an analysis which I think every other security analyst in the country must listen to and must read. Mayank, thank you very much. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. All right, now let's listen to Alex Paul Menon again. And by the way, that was Mayank Jain, security expert and an expert on Naxalites and Maoists and an expert on infiltration. He told us that this is exactly what's going to happen, and he said he was the only man to say that Raman Singh, the Chief Minister of Chhattisgarh, is not, again I repeat, is not going to release any Maoist from jail. And that's exactly what he's done. He's performed a miracle of sorts. Let's hear Alex Paul Menon again. My state government, my chief minister, and my chief secretary, and all my seniors and friends and family who had supported me in this tough time, and who helped that this release, happen faster. हम सरकार जहां भेजते हैं वहां काम करने वाले हैं. अगर सरकार चाहता तो यही रहेंगे.